देखो ध्यान नाल कंसैप्ट रहिंदा साडा रियल रेंटल वैल्यू RRV। ਅਸੀਂ हले तक GAV ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਸਟੈਪਸ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ MVFR ਆਂਦੇ, ਸੈਕੰਡ ਚ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ, ਉਹ ਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਂਦਾ। थर्ड स्टेप च आंदा एक्चुअल रेंट। उस एक्चुअल रेंट की जगह की यूज होगा रियल रेंटल वैल्यू। अगर एक कंसेप्ट क्वेश्चन च होया तो उस स्टेप 3 दे विच एक्चुअल रेंट नु कौन रिप्लेस कर दूगा रियल रेंट। इन्नी चीज समझे? पूरा पैटर्न जीएवी तो लेके तुसी लास्ट तक समझ चुके हो। उस पूरे पैटर्न च एक कंसेप्ट किथे एंटर करूगा इन प्लेस ऑफ एक्चुअल रेंट। स्टेप 3 पहला लोकेशन समझ आ गई। ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿਉਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਲਿਫਟ ਐਂਡ ਪੰਪ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਅ ਕਾਮਨ ਗਾਰਡਨਰ, watchman, lighting of the common stairs, corridors, water and electricity bills, if included in rent, are borne by the owner and rent includes the cost of these items. एक्चुअली ये खर्चे कहता बेयर किने करने सी ओनर ने, बट ये खर्चे नाल ऐड किथे कीते हुए रेंट दे अंदर। एक्चुअल रेंट जेड़ा ना उस इंक्लूडेड आ। तुसी की करोगे ये खर्चे नु एक्चुअल रेंट चो माइनस कर दोगे, देन तो समझ आऊगा रियल रेंटल वैल्यू। रीजन समझो। मैं तो हाउस प्रॉपर्टी दी रेंट से चेष्टा, मैं तो क्या ਤੁਹਾਡਾ रेंट विल बी 40,000 रुपीज पर मंथ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਫਟ ਐਂਡ ਪੰਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ 45,000। ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 45। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਰੱਖਿਆ 45,000 ਪਰ ਇਸ ਵਾਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 5,000, क्योंकि पहला मैं बिना ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ 40। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸੋ ਉਸ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 40,000। ਇਹ 5,000 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਰਾਜਾ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 40, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ 'ਚ 45 ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 40। ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਰ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈ ਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਸਟ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੈਂਟ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। अगर ਹੁਣ जब इनकम मेरी कैलकुलेट हो रही, सोचो ध्यान, मेरी इनकम कैलकुलेट हो रही है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, गवर्नमेंट कहती कि तुसी 45,000 रुपीज चेष्टा को ले। मैं क्या सर 5,000 में आपको कादा लिया लिफ्ट एंड पंप मेंटेनेंस, और वो 5,000 में इधर पे करता, मेरी कहती इनकम। वो तो मैं बियर कर रहे हैं कोई खर्चे, क्यों कर रहे हैं लिफ्ट एंड पंप के खर्चे इस बंदे लिए, इसलिए मैं उत्थे पे करने से तो मैं इधरों नाल रेंट च रिसीव भी कर ली। बट सिंपल मैनू आ दसो मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की केड़ी हुई 40,000, तो तुसी सर 45 लिख के क्यों कर रहे हो। स्टेप 3 च एक्चुअल रेंट 45 क्यों पा रहे हो, यू शुड पुट 40,000 देयर। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖੋ ਰੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ। ਯੈਸ অর ਨੋ। ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਆ, whether these are lift and pump maintenance, swimming pool maintenance, salary of common gardener and watchman, lighting of common stairs and corridors, and water and electricity charges, अगर वो इंक्लूडेड इन द रेंट है तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ डिडक्ट ਕਰਦੇ ਨੇ आउट ऑफ द एक्चुअल रेंट बिफोर कंपेयरिंग इट विद अदर रेंटल वैल्यूज। मतलब स्टेप 3 च एक्चुअल रेंट पाना ही नहीं, उत्थे की पाना रियल रेंटल वैल्यू पाना। यस और नो। एक्चुअल रेंट चो पहला डिडक्शंस कर दोगे सारियां, फिर तुसी ओनू स्टेप 3 च ले आके बाकियां च कंपैरिजन च पाओगे। सिंपली आरआरवी लेके जाओगे उत्थे। कोई मुश्किल लगी हुन गल, इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है।
पहले हमने ਇਹਦਾ क्वेश्चन देखिए इलस्ट्रेशन 1 की लिखा पढ़ो कहते मिस्टर एस प्रतिहारी has constructed a multi-story building at Delhi consisting of 40 flats. Each flat is let out at 1000 per month. कितने flats ही total? 40. Each flat let out at 1000 per month. The municipal authorities have fixed the rental value of this property. कितना? 4,50,000 per annum. The owner bears the following expenses. वही चार नाम देख रहे हैं, ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ MV FRV स्टैंडर्ड रेंट सब करके यही वैल्यू आऊगी बिकॉज ना तो FRV गिवन है ना ही स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, तो MV वाला ही आ जाऊगा। एक्चुअल रेंट कितना बनया सोचिए, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितने फ्लैट्स? 40 फ्लैट्स, 1000 पर मंथ, तो साल दे 12,000 मीन 1000 इंटू 12 भी होगा और नाल 40 फ्लैट्स भी होगा, 4,80,000 हो गया एक्चुअल रेंट। बट 480 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਪਰ ਐਨਮ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਪਰ ਮੰਥ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਟੂ 12 ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਰ ਐਨਮ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ करते किन्ने 32,600 बचा कितना 4,47,400। MV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज स्टेप 3 की कर दे, मतलब पिछले स्टेप का आंसर वही आया होगा और एक्चुअल रेंट की जगह रियल रेंटल वैल्यू लिख ली है 447,400 विच एवर इज हायर। अनरियलाइज तो कुछ सीगा नहीं, तो मीन्स थोड़ी की आऊगी 4,50,000 विल बी योर GAV, यस और नो। स्टेप 4 विल बी वैकेंसी अलाउंस, वो भी नहीं है, मैं GAV फाइंड करने ली वैकेंसी भी नहीं है, तो 4,50,000 विल बी योर आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट रहता? देखियो तरफ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट ARV मींस GAV ਦਾ क्वेश्चन ही है। GAV ਦਾ बोलो स्टेप 1, MV और FRV व्हिचएवर इज हायर, MV ही आ जाऊगा। स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है तो सेकंड स्टेप ERV भी सेम आ जाऊगा 48। स्टेप 3 च की करना, सेकंड स्टेप और एक्चुअल की जगह होना चाहिए रियल रेंटल वैल्यू आ जाओ, अनरियलाइज तो नहीं है, व्हिचएवर इज हायर और वैकेंसी भी नहीं है, मतलब उत्थे ही चलूगा। मींस मेन बचेगा कि सोचने ਲਈ रियल रेंटल वैल्यू। रियल रेंटल वैल्यू ਲਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ एक्चुअल रेंट कितना ਪਹਿਲਾਂ 50,000 पर एनम। लिफ्ट एंड पंप मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय ओनर कितना, ये भी अच्छी इंक्लूडेड है, माइनस करोगे। सैलरी ऑफ कॉमन गार्डनर एंड वॉचमैन पेड बाय टेनेंट्स टू द ओनर कितना ले रहे हैं आप 500 पर मंथ, तो वो भी कितना हो गया 6,000। दोनों डिडक्ट करोगे तो की बचे RRV 38,000। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, इन्ना क्लियर हो गया। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ RRV फाइंड कर लिया तो ਹੁਣ बोलो GAV ਦੇ फर्स्ट स्टेप ਦਾ आंसर 48,000 ਆਊਗਾ, सेकंड ਦਾ भी आंसर 48,000 ਆਊਗਾ, थर्ड which 48,000 will be compared with 38,000 whichever is higher 48। अगेन फोर्थ स्टेप GAV ਦੇ अंदर अगेन वैकेंसी अलाउंस तो है नहीं, तो 48 ही आ जाऊगा एंड योर आंसर विल बी 48,000, यस और नो, एग्री। बट ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ सैलरी ऑफ कॉमन गार्डनर एंड वॉचमैन सीगी 500 पर मंथ जो टेनेंट इज पेइंग टू मी, मेरा किराएदार मेनू किन्ने दे रहा है 500 पर मंथ मींस एनुअल किन्ने 6,000। एक चीज समझ आ गई ਹੁਣ व्हेन आई एम रिसीविंग, चेष्टा समझो ध्यान ना, फॉर कॉमन गार्डनर एंड वॉचमैन आई एम रिसीविंग 6,000 रुपीज फ्रॉम माई टेनेंट। आगे पढ़ो, एक्चुअली मैं गार्डनर और वॉचमैन को टोटल दे किन्ने रहा 4,200। सर उच्च भी कमाई हो गई, मैं अपने टेनेंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡਨਰ ਔਰ ਵਾਚਮੈਨ ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 4,200। 1,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦਾ।
but that is not relating to your house property. That will go to your income from other sources. that collection is for that collection is for 6,000, but you are paying actually paying 4,200. 1,800 ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ, but ਉਹ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। that will be your other source income, because ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਨਾ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। so it will go to income from other sources. income from other sources. am I clear? clear ਰਾਜਾ? ਸੋ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਸਟਾ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਵੀ ਆਰਆਰਬੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਲਈ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਜਾਂ 5 ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, 5 ਖਰਚੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਚੱਕਿਆ 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ। एक्साइटेड हो जाता ना बच्चा। की लिखा क्वेश्चन देखो, मिस्टर ए हु हैज इनकम ओनली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड अबाउट हिज हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है ग्रॉस रेंटल इनकम 1 लाख रुपीज, ग्रॉस रेंटल इनकम देती आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग आइटम। सर 9 चीजा बाहर कटती है मैडम ने। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 1 2 3 4 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 9 ਚੀਜ਼ਾਂ 9 ਦੀਆਂ 9 ਬਾਹਰ। ਪੜੋ ਕੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਲਿਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਹੋਈ? ਯੈਸ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਦੀ? ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਏਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਕੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਕਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ? ਸਟੈਪ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। म्यूनसिपल टैक्स उत्थे करना, वैकेंसी उत्थे करनी, कहती इको स्टेप च सारे बाहर। अगे रिपेयर्स करी दे ही नहीं। पेमेंट ऑफ चौकीदार, बच्चा कहता चौकीदार तो कितने पढ़िया नहीं, बच्चा वॉचमैन पढ़िया कि नहीं? सैलरी ऑफ गार्डनर एंड वॉचमैन, तो वॉचमैन एंड चौकीदार इज वन एंड द सेम थिंग, यस और नो? सो थोड़ा जिहा कॉमन सेंस नाल रखनी है। देन बैंक कमीशन कदी आया क्वेश्चन? चक के बाहर। लीगल एक्सपेंसिस ऑन रिकवरी ऑफ रेंट, ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਗਾਰਡਨਰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਐਂਡ ਗਾਰਡਨਰ, ਇਹ 3 ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ। ਮੈਡਮ ਨੇ 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਐਡ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ट्राई करियो कैलकुलेटर पिक करके कि तुसी की करोगे ऐड करके। पहली गल की करना चाहिए ऐड बैक, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ आंसर चेक करो कितना आ रहा। चेक करिए ਤੁਹਾਡੇ सब ਦੇ नॉलेज। देखो ਤੁਹਾਡੇ को आंसर आ वाला भी आ गया, उस तो बाद अगर सब कुछ ऐड किया तो आ भी आ गया। पॉइंट इज पहली चीज कि इदा ओरली कुछ भी ऐड कुछ भी लेस करना चाहिए नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ 1 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸਭ ਐਡ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਟੋਟਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਗ੍ਰੋਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟੈਪਸ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟੈਪਸ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? 1,87,500 ਆ ਗਿਆ 1,85,700। 1,85,700 ਚੋਂ ਹੁਣ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 7,500, 1,000 ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਐਂਡ 1,200 ਗਾਰਡਨਰ। ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ दैट इज द ਰੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ। ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ, उसको फिर 3 चीज़ा फैसिलिटीज वाली माइनस कर दो, यू विल गेट अ रियल रेंटल वैल्यू।
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਵੀ गिवन है ना एफआरवी गिवन है ना स्टैंडर्ड रेंट गिवन कुछ भी नहीं है मींस जो आरआरवी आया दैट विल बिकम योर जीएवी यस और नो सो जीएवी आया ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ नहीं दैट विल बी स्टेप 1 नहीं है 2 नहीं है 3 तक आ गए 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਟੈਪ 4 ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਯੋਰ ਜੀਏਵੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ 1,66,000 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਚ ਆਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀਏਵੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ 1,66,000 ਮਾਈਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ 15,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 166 ਚੋਂ 15,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 1,51,000 ਨੈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 30% ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1,51,000 ਚੋਂ 30% ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਮ 1,05,007 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਸ पहले सारे ऐड करके की क्या दो एक्चुअल रेंट या कॉम्पोजिट रेंट ठीक है उस एक्चुअल एंड कॉम्पोजिट रेंट जो माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज 3 फैसिलिटीज वो माइनस करके यू विल गेट द रियल रेंटल वैल्यू फिर अपने जीएवी वाले स्टेप्स लगा के शुरू कर स्टेप 1 एंड 2 एंड 3 एज इट इज चल जाने फोर्थ स्टेप च वैकेंसी माइनस करके जीएवी आऊगी अगे थोड़ा सिंपल फॉर्मेट ये सुनो एनी डाउट ठीक है अगली चीज सुनो एक चीज बस लास्ट रह गई एंड आवर चैप्टर इज फिनिश्ड दिस क्वेश्चन can they compute the income from house property of Mr. Anil and Sunil for the year ending 31st March 2025 from the information given below दो persons given Mr. Anil and Sunil are brothers they have inherited the house property from their father with equal share ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ property inherit ਕੀਤੀ equal share rent realizable from the property is 27,000 per annum municipal tax is 9,000 per annum to be borne by the landlord owner property is on a leasehold land this property is on a leasehold land and annual lease rent is 3,000 rent collector is paid rupees 100 per month कुछ नहीं करना property was mortgaged by taking a loan of this and this for the purpose of partnership business purpose कोई और होगी कुछ नहीं करना फिर इस लोन दा भी one of the flats in the building fetching monthly rent of 500 was vacant for 2 months a question can they calculate the income from house property ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ सबलेटिंग सीखी ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਸਬਲੈਟਿੰਗ is to be charged under the head income from other sources income from other sources because ਉੱਥੇ सबलेटिंग ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਚੋਂ सबलेट ਕਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ but that property is not mine that will not become my house property income that will go to other source but very important point आगे रीड करो बट इफ द लैंड इज टेकन ऑन लीज ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 40 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹਾਈਐਸਟ 99 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਫ ਦ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਔਨ ਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ then we will be considered the owner ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਂਟ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी च आ जाओगी अदर सोर्स च हुन नहीं आऊगी सो ये क्वेश्चन च केड़ी है इनकम केड़ी है जगह लीज ते ही है सो सानू ओदा ओनर मान लिया जाऊगा यस और नो ठीक है हुन दसो कोई सानू एमवी एफआरवी गिवन है स्टैंडर्ड रेंट गिवन है दो स्टेप्स खत्म स्टेप 3 की हुंदा हायर ऑफ स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड एक्चुअल रेंट कितना 27,000 पर एनम लिखा अनरियलाइज कुछ नहीं किया थर्ड स्टेप सॉल्व हो गया जीएवी इज इक्वल टू थर्ड स्टेप माइनस वैकेंसी अलाउंस वेकेंट की सी 2 मंथ्स एक फ्लैट उचो वेकेंट सी जिदा मंथली रेंट आंदा सी 500 500 पर मंथ 2 मंथ्स का 1,000 रुपीज सो 1,000 रुपीज बाहर कट के जीएवी आ गया देन जीएवी म्यूनिसिपल टैक्स चेक करो
9,000 पर मंथ पर एनम। नैव आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई। आईओएल दा पॉइंट पार्टनरशिप बिजनेस दा सी इथे किते काम नहीं आना। इनकम 11,900। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यस और नो? कोई डाउट? हाँ वाला भी देखियो, क्वेश्चन 9 चेक करियो। देखो, श्री एच मुखर्जी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग ऑन 30 जून 2000। तो बुक होगा 18। It had two flats of equal dimension. One flat was let out to a tenant for residential purpose on a monthly rent of 1,000. Other flat was let out to a friend for residential purpose on monthly rent of 1,000. Okay. Sri Mukherjee paid the following expenses: municipal tax, fire insurance premium, rent collection charge, repair alteration, interior decoration charges, legal charges for recovery of rent, interest on loan, conservancy tax. Find out the income. आही क्या? मैनू दसो, म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल वैल्यू गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ एमवी किन्नी? 20,000। और दोनों फ्लैट्स इक्वल डायमेंशन दे ਆ मींस दोनों ਦੀ एमवी विल बी 10,000 ईच। 20,000 टोटल है ना। इक्वल है मींस 10,000 म्यूनसिपल वैल्यू पहले फ्लैट दी, 10,000 दूसरे फ्लैट दी। और कोई एफआरवी गिवन है? एफआरवी नहीं। स्टैंडर्ड रेंट नो। एक्चुअल रेंट दोनों का गिवन ही है 1,000 पर मंथ। सो मींस पहली चीज की आई एमवी और एफआर विच एमवी आ जाऊगा 10,000। देन स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, 10,000 ही आ जाऊगा। थर्ड स्टेप बोलो, एक्चुअल रेंट कितना आना थर्ड स्टेप? 1,000 पर मंथ है, साल का 12,000। कोई अनरियलाइज नो। 10 और 12 विच एवर इज हायर मीन स्टेप 3 ते आ जाऊगा आंसर 12,000। यस और नो? पहले हाउस च भी दूजे हाउस च भी दोनों सेम कंसेप्ट हले तक चल रहा है। उस तो बाद वैकेंसी वो भी नहीं है मीन दोनों के जीएवी कितने आ गए 12,000। दोनों के जीएवी 12,000 आने तो बाद म्यूनसिपल टैक्स 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू मीन 10,000 का 1,000। सो 1,000 एचओ डिडक्ट हो जाऊगा, 1,000 एचओ हो जाऊगा। नाल की लिखा एक और आ चीज पढ़ो, कंजर्वेंसी टैक्स इन एडिशन टू द म्यूनसिपल टैक्स। सो एक 300 तुसी नाल पे करना। 300 टोटल है कहाँ? 150 माइनस करोगे कितना बचे? नैव आगे आगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 3,255 3,255 24A लगन तक सब कुछ सेम गया। 24B इंटरेस्ट ऑन लोन वो किधा है? सिर्फ सेकंड फ्लैट। चेक करियो। खत्म। कोई डाउट? इजी? यस और नो? मतलब पूरा क्वेश्चन दोनों हाउसेस लिए सेम चल रहे हैं, सिर्फ एक आईओएल का पॉइंट अलग से। एनी डाउट राजा? हो जाऊगा। विद दिस सर चैप्टर इज कंप्लीट। रितिका एनी डाउट बच्चा? ओके, तो क्लियर? ठीक है, कर दिया मीटिंग ऑफ। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट?